Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. कांय म्हयन्या फाटीं रिवणाम पणसायमय म्हणटा तेजें रॉक कार्विंग आहा तेजे एक इश्यू येयल्लो की सायडीन चिरेखाण हें जालें मागीर कोर्टान सुवो मोटो विशय केस घेतलेली आनी तेजे उपरांत आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान स्टेटमेंट केलो की एक्सपर्टांक घेवन थंय अभ्यास करतले म्हणून आनी तेजी डेट्स तेजी हिस्ट्री सायंटिफीक हितूंतल्यान काडून घेतले म्हणून आमच्या वांगडा आतां आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे असिस्टंट सुप्रिटेंडंट आर्किओलॉजी वरद सबनीस तेजो स्टेटस कितें आतां आमी जाणून घेया. तुमी कोर्टान स्टेटमेंट केल्या उपरांत मागीर ते एक्सपर्ट हाडपा आसले ते कितें जालें फुडें? Actually, when this matter was brought before the court, we as a Department of Archaeology had assured the Honorable Court that we will invite experts from the field and seek their guidance, advice on how to preserve this rock art and also to carry out a survey to find out if there are more rock engravings in the vicinity. This is on the background of our common proposal with State Archaeology of Maharashtra to apply for World Heritage status to the rock art sites which are found in Konkan region, inclusive of Goa. And in that tentative list, which is accepted by UNESCO, this site of Pansaima is included. So on this background, we invited experts who are prehistorians and having well-established expertise in the field of rock art. So for this we had invited Dr. Parth Chauhan, who is Associate Professor from Indian Institute of Science, Education and Research from Mohali, and Dr. Riza Abbas, who is also a well-known prehistorian from a rock art institute located in Nasik, Maharashtra, and Dr. Toshabanta Padhan from University of Nalanda. Out of all these three experts, Dr. Parth Chauhan visited the site and surrounding area 15 days back, and now we have Dr. Riza Abbas, who is on visit to Pansaima rock art site, and we have conducted a survey and also done some study on Pansaima and surrounding area, and the findings will be submitted to the court very soon. एकदा तिगांचे स्टडी करून तिगू एक्सपर्ट येवन स्टडी करून जाल्यार म्हणून कोर्टाक सबमीट करता. येस, तिगां पैकी 2 जाण आतां येवन गेल्ले आसा आणि थर्ड वन विल बी विजिटींग नेक्स्ट मंथ, अर्ली नेक्स्ट मंथ. सो वन्स देअर फायंडिंग्स आर कंपायल्ड, सेम विल बी सबमिटेड टू ऑनरेबल हायकोर्ट थ्रू गव्हर्मेंट. ते एक्सपर्ट आहा ते कित्याचेर काम करता एक्चुली, कितें फायंड आवट करतले, तेंचो म्हणजे तेंचे टार्गेट कितें आसतलें? सी, दिस इशू केम अप बिकॉज देर वॉज सम query happening in the vicinity. So Honorable High Court took this matter as suo motu PIL and instructed us to consider the safety measures to be taken. And in this context, we had seek the advice from experts. So how to preserve this site for posterity and to avoid any such developmental activities which can create harm or danger to the site. So to frame guidelines and also to form a strategy for its preservation. So in this context we have invited these experts. एक्सपर्टांचो रिपोर्ट आसता तो मागीर जेन्ना युनेस्को सायटा ती परत एप्लिकेशन तुमकां करपाक जाय थंय यूज जातलो? Yeah, these experts are well known in their field in the global context. So their inputs which we have invited them in the context of PIL which is going on, but their inputs will definitely be useful in the proposal which we are preparing for UNESCO World Heritage status. So of course it will be useful. ओके, आमच्या कडेन जे 3 एक्सपर्ट आसले तितले एक एक्सपर्ट आमच्या कडेन डॉक्टर रिजा अब्बास, ते गोंयान येवन पणसेमळ सायट तेंच्यांनी पयलीं व्हरून थंय इन्स्पेक्शन केलें. सो तेंचे कडल्यान जाणून घेवया एक्झॅक्टली तांकां थंय कितें दिसलें आनी खंयच्या लायनीचेर ते अभ्यास करतले. सर, वेलकम. आपने साइट पे विजिट किया, आपने देखा है, क्या लगा आपको? देखिए, साइट तो मैंने पहले भी 2014 में देखी थी और हमारे वरद साहब, डॉक्टर वरद, इनके साथ में गया था.
साइट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक यूनिक सिंबॉलिज़म है इस साइट का जो कि और जगह नहीं देखने को मिलता है पूरे कोंकण में, चाहे वो रत्नागिरी का एरिया हो और चाहे वो ये एरिया हो, और नीचे उडुपी तक एक सिंबॉलिक मैनिफेस्टेशन है रॉक आर्ट का जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया से बहुत भिन्न है, बहुत डिफरेंट है। तो बहरहाल ऐसी साइट्स का वर्ल्ड हेरिटेज होना आवश्यक भी है, ज़रूरी भी है, और उसके लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अभी मुझे जो वरद साहब ने यहाँ पर इनवाइट किया, मुझे देखना था कि कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ क्या प्लान कर सकते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन आगे किया जा सकता है, और क्या साइंटिफिक स्टडीज़ इस पे कौन कौन सी कैसे किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो वो हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में। तो मैं अपनी रिपोर्ट बहरहाल दूंगा इस कंटेक्स्ट में कि किस तरह से इसमें फर्दर फ्यूचर स्टडीज़ क्या हैं, प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, कितना स्कोप है फ्यूचर में। स्कोप तो बहुत है। तो वो हम लोग ने कल सब डिस्कस किया, साइट पे गया, देखा, और कुछ चीज़ें नई दिखी जो डॉक्टर वरद के ऑब्जर्वेशंस थे, कुछ बहुत वैलिड ऑब्जर्वेशंस थे, उसको हम लोग रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे, और उस कंटेक्स्ट में आगे फ्यूचर में क्या जो इन्होंने ऑब्ज़र्व किया और क्या जो हमने जाके जो देखा उसको कैसे आगे हम ले जा सकते हैं, और क्या नया डायमेंशन साइट में हम जोड़ सकते हैं साइंटिफिकली। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्चुअली। और किस तरह से साइट को कितना दूर तक हम प्रिजर्व करें ताकि डैमेज कम से कम हो। जो नेचुरल एजेंट्स हैं वो अपने आप तो डैमेज कर रहे हैं, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। पानी है, हवा है, सनलाइट है। इसके अलावा जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, जो मैन मेड डैमेजेस जो होती हैं कभी कभी साइट्स पे, उनको कैसे अवॉइड करें या किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाए उसको, उस पर भी हमारे डिस्कशंस हुए हैं डॉक्टर साहब से। तो वो आगे हम लोग सब रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। एक साइड के बारे में स्टडी थी, मगर पूरे कोंकण बेल्ट में ऐसे बहुत सारे, जी, सबके लिए कुछ पॉलिसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग ने थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन और भी जाके किया, और डॉक्टर साहब ने हमको और भी दिखाया कि कहाँ कहाँ पर है, और पहले भी हम लोग थोड़ा से देख चुके हैं, इनके साथ मैंने फील्ड वर्क किया है, और भी जो रॉक आर्ट साइट्स हैं उनका एक डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट हम लोग ने तैयार किया था। तो ऑलरेडी बहुत सारी नोन साइट्स हैं यहाँ पर, लेकिन एक तो प्रॉब्लम क्या है कि इस एरिया का, कोंकण का प्रॉब्लम ये है, और स्पेशली जो ये वाला एरिया है आपका, जो गोवा के आसपास का बेल्ट है, सिंधुदुर्ग का, यहाँ पर लैटराइट एक्सपोजर्स हैं, उनमें रॉक आर्ट है। लैटराइट अपने आप में एक बहुत ही सॉफ्ट पत्थर है, और दूसरी चीज़ वेजिटेशन कवर इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि चीज़ों को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है जितना लगता है लोगों को। ये तो हम ही लोग जानते हैं कि कितना मुश्किल है। तो वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स हम लोग और भी ढूंढने की कोशिश करें, और कुछ फील्ड वर्क्स भी प्लान कर रहे हैं कि जितना हेरिटेज है सामने आना चाहिए ये, और उसके लिए लेकिन थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, लेकिन वो अगर साइट्स होंगी तो ज़रूर प्रयास ये रहेगा कि सामने लाई जाए पब्लिक के। ओके, आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका काम क्या रहता है? देखिए, उसके बारे में हम लोगों का देखिए बहुत पिछले 20 सालों से तो मैं रॉक आर्ट डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ। उसके साथ साथ आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करते हैं हम लोग, और भी न्यूमिस्मैटिक्स के लिए जाना जाता है। बेसिकली जो ओल्ड कॉइन्स हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे, अलग अलग डिसिप्लिन में देखते हैं जो। तो मैं वहाँ पर रॉक आर्ट और आर्कियोलॉजी देखता हूँ। तो काफ़ी सारा जो इंडिया का जगह है, सेंट्रल इंडिया है, फिर गुजरात है, राजस्थान है, ये पार्ट है, मध्य प्रदेश का एरिया है, कर्नाटक का एरिया है, ये सब एक्सप्लोर करके बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन हम लोग ने किया है, जिसका रिपोर्ट हम लोगों के यहाँ है, और सॉफ्ट कॉपीज़ में बहुत सारा जो डिजिटाइज्ड फॉर्म में जो भी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन किए हैं वो मौजूद हैं हमारे यहाँ। गोवा का ये साइट यूनेस्को में जा सकता है, यूनेस्को की लिस्ट में जा सकता है। देखिए, ये सिंबॉलिज़्म जो है ना, मैंने बताया कोंकण का जो सिंबॉलिज़्म है ये बहुत डिफरेंट है। ऐसा सिंबॉलिज़्म आपको वर्ल्ड में दूसरी जगह नहीं मिलता है। एक तो ये जो पेट्रोग्लिफ हैं लैटराइट बेल्ट में, जिस तरह के फॉर्म्स यहाँ पर मैनिफेस्टेड हैं, पूरे मैं कोंकण की बात कर रहा हूँ, वो फॉर्म्स आपको दूसरी जगह देखने को सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन कुछ बहुत यूनिक फॉर्म्स हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इंडिया में तो वैसे फॉर्म्स बहुत जगह नहीं हैं, एब्सेंट हैं, ख़ासकर जो ह्यूमन फिगर्स हैं, कुछ एनिमल डिपिक्शंस हैं, और कुछ ऐसे अनआइकॉनिक सिंबल्स हैं जो दूसरी जगह नहीं देखने को मिलते हैं। ये तो इस कंटेक्स्ट में ये साइट और ये एरिया बहुत यूनिक है। जी,
थँक्यू. तुम्ही बाबा तिघांचे जेन्ना तिनूय एक्सपर्टांचे जेन्ना रिपोर्ट येतले ते कोर्टान सबमीट जातले तेजे उपरांत ते केसीचो वेगळो कोर्ट निर्णय लायतले. बट हे तिगूय एक्सपर्टांचे रिपोर्ट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट जेन्ना ते एप्लिकेशन घालतले मेन एप्लिकेशन की युनेस्को सायटाच्या लिस्टान हो पणसायमळ रॉक कार्विंग लिस्ट जावचें म्हणून ह्या तिगा एक्सपर्टांचो रिपोर्ट थंय यूज जातलो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवसांगडा, लौकिक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.